Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.3 डिफरेंट फेजेस ऑफ द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के विभिन्न चरण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to find an exact date for the start of the Cold War, since the war was never declared and even the undeclared aggression was of a long term kind. चूंकि शीत युद्ध की कभी घोषणा नहीं की गई थी और यह अघोषित युद्ध भी दीर्घकालिक किस्म का था, अतः इसके प्रारंभ होने की सही तारीख बता पाना बहुत कठिन है। After the initial phase 1945 to 47, which has been called the ossification phase, the Cold War began in the earnest, and at its center was the creation of a European post-war order. The onset of the Cold War reflected the failure of the different powers to consistently respect the principles agreed on a wartime conferences of Yalta and Potsdam. प्रारंभिक चरण सन 1945 से 1947, जिसे अस्थि विकास चरण कहा जाता है, ऑसिफिकेशन फेज। उसके बाद शीत युद्ध में तेजी आई, जिसके केंद्र में था युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था का निर्माण। शीत युद्ध के प्रारंभ ने विभिन्न शक्तियों द्वारा याल्टा और पोट्सडैम में युद्धकालीन सम्मेलनों में स्वीकृत सिद्धांतों का सतत सम्मान करने में विफलता प्रतिबिंबित की। फर्स्ट फेज, प्रथम चरण। In the early phase, the fate of Poland turned out to be a crucial issue. All the countries had a special interest in Poland. प्रारंभिक चरण में पोलैंड का हश्र एक नाजुक प्रश्न बन गया। पोलैंड में सभी देशों की विशेष रुचि थी। फ्रांस and Britain had declared war on Germany when Hitler's army had crossed the Polish border in September 1939. जब सितंबर 1939 में हिटलर की सेना ने पोलैंड की सीमा पार कर ली, तो फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। For Russia, Poland has been a historic enemy. On the other hand, Polish lands had been the traditional gateway for invasion of Russia from the west. रूस के लिए पोलैंड एक ऐतिहासिक शत्रु था, तो दूसरी ओर पश्चिम की ओर से रूस पर चढ़ाई करने के लिए पोलैंड की भूमि परंपरागत प्रवेश द्वार थी। When the Soviets entered Poland in 1944, they formally handed over power to the Lublin government, pro-communist committee of national liberation. जब सन 1944 में सोवियत संघ ने पोलैंड में प्रवेश किया, तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की समर्थक साम्यवादी राष्ट्रीय मुक्ति समिति समर्थक लुब्लिन सरकार को औपचारिक रूप से सत्ता सौंप दी। The future of Poland was discussed at length at the Yalta Conference of Stalin, Churchill and Roosevelt. पोलैंड के भविष्य पर स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट के याल्टा सम्मेलन में विस्तार में चर्चा हुआ। No agreement could be reached on the exact boundary of Poland. पोलैंड की सटीक सीमा के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका। But Poland ultimately came into the Soviet camp. The Sovietization of Poland became a landmark in the origin of the Cold War. अब देखिए, लेकिन पोलैंड अंततः सोवियत खेमे में आ गया। पोलैंड का सोवियतीकरण शीत युद्ध के प्रारंभ सीमा चिन्ह बन गया। The second crucial area of conflict was the Balkan. अब देखिए, दूसरा टकराव का मुख्य क्षेत्र हुआ बल्कन। Britain and the Soviet Union had decided to have their own spheres of influence in the Balkan
areas. बाल्कन ब्रिटेन एवं सोवियत संघों द्वारा दोनों ने बल्कान इलाके में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बनाने का निश्चय किया. But in all the countries except Greece, communities regimes were installed, and once the communist governments were installed, they were openly supported by the Soviet Union. लेकिन ग्रीस को छोड़कर सभी देशों में साम्यवादी सरकार बना दी गई और एक बार जब साम्यवादी शासन लागू हो गया तो सोवियत संघ ने उन्हें खुला समर्थन देना प्रारंभ कर दिया. Except Greece, which came under British control, all other East European countries fell under Soviet domination. ग्रीस को छोड़कर जो ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया, अन्य सभी पूर्वी यूरोपीय देशों पर सोवियत संघ का प्रभुत्व स्थापित हो गया. Churchill's formulation of this state of affairs was that an iron curtain had descended over Europe. This led to an intentionally strained relationship between the East and the West, including between the USA and the Soviet Union. चर्चिल ने इस स्थिति का प्रतिपादन इस प्रकार किया कि यूरोप के ऊपर एक लोहे का आवरण छा गया. इससे पूर्व एवं पश्चिम के रिश्तों में भारी खटास आ गई, जिसमें अमेरिका एवं सोवियत संघ भी शामिल थे. आगे देखिए. आफ्टर the unconditional surrender of the Allied forces, Germany was divided into 4 occupation zones, each one under the control of the Soviet Union, the USA, Britain and France. मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के आगे बिना शर्त समर्पण के बाद जर्मनी को 4 अधिग्रहण क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया, जिनमें से प्रत्येक भाग पर सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण था. बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी, fell in Soviet occupation zone, but Berlin itself was divided into 4 occupation zones on the same pattern as the whole of Germany. अब देखिए, बोल रहा है जर्मनी की राजधानी बर्लिन सोवियत अधिग्रहण क्षेत्र में थी, लेकिन जर्मनी की तर्ज पर अधिग्रहण क्षेत्रों में बर्लिन स्वयं पूरी बटी थी. The military occupation was a temporary arrangement till the time the peace treaty was concluded. सैन्य कब्जा शांति समझौता संपन्न होने तक चलने वाली एक अस्थायी व्यवस्था थी. The Potsdam Conference was convened to finalize the peace treaty with Germany. अब देखिए, जर्मनी के साथ शांति समझौता करने के लिए पोट्सडैम सम्मेलन बुलाया गया था और शांति समझौता संपन्न हो गया. The Allies were not clear on critical issues such as whether Germany should be disarmed, demilitarized and partitioned. अब देखिए, महत्वपूर्ण विषयों पर मित्र राष्ट्रों की राय स्पष्ट नहीं थी, जैसे क्या जर्मनी को शस्त्र विहीन कर दिया जाए. आगे बोल रहा है सेना विहीन कर दिया जाए, मतलब सेना वहां से हटा लिया जाए, या उसका विभाजन कर दिया जाए. टू व्हाट डिग्री वॉज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जर्मनी इंडस्ट्री टू बी अलाउड. जर्मनी के उद्योगों का किस सीमा तक पुनर्निर्माण किया जाए. द सोवियत यूनियन वांटेड अ pauperized and weak Germany so that its interests did not get threatened by Germany. अब देखिए, सोवियत संघ एक कंगाल और कमजोर जर्मनी चाहता था ताकि जर्मनी द्वारा उसके हितों के लिए खतरा न बन सके. The Soviet Union also demanded $20 billion from Germany as reparation fee.
सोवियत संघ ने जर्मनी से क्षतिपूर्ति के रूप में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माना की मांग की, but the Western allies did not agree to these proposals. लेकिन पश्चिमी मित्र राष्ट्र इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए. Later, the British, American and French zones were merged into one, and Federal Republic of Germany, West Germany, came into existence. अब देखिए आगे क्या हुआ. बाद में ब्रिटिश, अमेरिका और फ्रांसीसी अधिकार वाले क्षेत्रों का मिला दिया गया और इस तरह जर्मन संघीय गणराज्य पश्चिमी जर्मनी अस्तित्व में आया. आफ्टर द इलेक्शन इन द न्यू स्टेट, अ प्रो वेस्ट गवर्नमेंट केम टू पावर. नए राज्य में चुनाव के बाद एक पश्चिम समर्थक सरकार सत्ता में आ गई. इट स्टार्टेड गेटिंग हेवी फाइनेंशियल एड फ्रॉम अमेरिका. उसे अमेरिका से भारी मात्रा में वित्त सहायता भी प्राप्त होने लगी. Soon, with the Soviet help, the other zone also created a state called German Democratic Republic, East Germany. जल्द ही सोवियत संघ की मदद से दूसरे क्षेत्र भी राज्य बन गया जो जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य पूर्व जर्मनी कहलाया. The Western Allies wanted to introduce monetary reforms in Germany, but the Soviet Union did not and responded by what is known as the Berlin Blockade. अब देखिए आगे क्या हुआ. पश्चिमी देश जर्मनी के मौद्रिक सुधार लाना चाहते थे, लेकिन सोवियत संघ ने अपना जवाब बर्लिन नाकाबंदी के रूप में कर दिया. The Soviet Union imposed a total ban on all traffic between Berlin and the western zones, be it rail, road and waterways. सोवियत संघ ने बर्लिन एवं पश्चिमी क्षेत्रों के बीच सभी प्रकार के यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या फिर जल मार्ग. This blockade was also in protest against the Brussels Pact, which was formulated as a mutual defense treaty between Britain, France and Belgium. यह नाकाबंदी ब्रसेल्स संधि के विरोध में भी थी, जिसे ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के बीच आपसी रक्षा संधि के रूप में प्रतिपादित किया गया था. The pact directed the signatories to extend military assistance to any member state in case of attack by Germany or any third party in Europe. अब देखिए इस संधि में हस्ताक्षरकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए थे कि जर्मनी अथवा यूरोप के किसी अन्य हमला किए जाने की स्थिति में वे हर सदस्य राष्ट्र को सैन्य सहायता देंगे. Though the name of the Soviet Union was not mentioned in the text, it was mainly aimed against the Soviet Union and not against Germany. हालांकि उसके मूल पाठ में सोवियत संघ के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, फिर भी उसका मुख्य लक्ष्य जर्मनी न होकर सोवियत संघ ही था. In Iran, a crisis developed when Soviet troops failed to withdraw by March 1946. जब मार्च 1946 तक सोवियत सेना ईरान से वापस नहीं हुई तो एक संकट पैदा हो गया. ईरान had been the main thoroughfare for Western aid to the Soviet Union during the war. युद्ध के दौरान ईरान सोवियत संघ तक पश्चिमी सहायता पहुंचाने का एक आम मार्ग था. Iran was rich in oil. The Soviet Union demanded privileged access to Iranian oil and refused to allow Iranian troops in the Soviet-held areas. US then mounted pressure in the United Nations Security Council, forcing the Soviet forces to leave Iran. ईरान में तेल भी बहुत मात्रा में था. सोवियत संघ ने ईरान के तेल पर अपना दखल बनाने का विशेषाधिकार मांगा
और सोवियत संघ के कब्जे वाले क्षेत्रों में ईरान की सेना को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। तब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सेनाओं द्वारा ईरान छोड़ने के लिए दबाव बना दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। In Turkey, the Soviet Union demanded the internationalization of the Bosporus Strait. The Western allies resisted that. In Greece, the USA and the Soviet Union backed rival factions. The Greek conservative forces had called upon the USA for support. टर्की में सोवियत संघ ने बॉस्पोरस जल डमरूमाध्य के अंतर्राष्ट्रीयकरण की मांग की। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। ग्रीस में अमेरिका तथा सोवियत संघ ने विरोधी ताकतों का समर्थन दिया। ग्रीस की रूढ़िवादी ताकतों ने अमेरिका से मदद की मांग की थी। It was in this backdrop that the US President Truman formulated his policy, which came to be known as Truman Doctrine. इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपनी एक नीति प्रतिपादित की जिसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। The Truman Doctrine was a policy of containment, that is, to limit or contain communism to areas where it had already trumped, but to not let it spread any further. ट्रूमैन का सिद्धांत अवरोध पर आधारित था, अर्थात साम्यवाद को उन क्षेत्रों तक सीमित या अवरुद्ध करना जिन्हें वह पहले ही जीत चुका है और उसे और आगे न बढ़ने देना। Thus, the American foreign policy changed from one of isolationism to become interventionist. This intervention was aimed at containing the spread of communism anywhere in the world. इस प्रकार अमेरिका की विदेश नीति अलगाववाद से बदलकर हस्तक्षेपवादी की हो गई। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य था कि विश्व में कहीं पर भी साम्यवाद के विस्तार को रोकना। आगे देखिए। There was a significant rise of communism in some of the Western European countries also. कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी साम्यवाद काफी तेजी से बढ़ा। The war-torn countries of Europe had hoped for improvement in their lot after the war, but that did not happen. यूरोप के युद्ध से जर्जर देशों को युद्ध के बाद अनेक सुधारों की आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोपियन national economies and industries were struggling, and the members of the communist parties in these countries were increasing. यूरोप की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं तथा उद्योग चरमरा रहे थे और इन देशों में साम्यवादी दलों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। It was in this background that US Secretary of State Marshall put forward his plan for European economic reconstruction, which is known as the Marshall Plan. इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना पेश की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। The plan envisaged American transfer of more than $10 billion to Europe over a period of 20 years. इस योजना में 20 वर्षों की अवधि में अमेरिका द्वारा $10 बिलियन से अधिक की राशि यूरोप को दिए जाने की बात कही गई थी। It was hoped that such massive monetary infusion would help Europe recuperate from the ravages of the war and thus stabilize its material condition and political climate. यह आशा की गई थी कि इतने बड़े धन से यूरोप युद्ध में हुई क्षति की भरपाई कर सकेगा और इस प्रकार अपनी भौतिक एवं राजनीतिक दशा सुधार पाएगा।
It was also believed that only a stable Europe would be able to resist the indigenous and external communist challenges. Significantly, the offer of aid was made to East European countries also. यह भी माना गया कि स्थिर यूरोप ही आंतरिक एवं बाह्य साम्यवाद की चुनौतियों का सामना कर सकेगा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि सहायता का प्रस्ताव पूर्वी यूरोपियन देशों के सामने भी रखा गया था। On its part, the Soviet Union revived the Komniform Communist Information Bureau in response of the Truman Doctrine and the Marshall Plan. ट्रूमन सिद्धांत एवं मार्शल योजना के जवाब में सोवियत संघ ने अपनी ओर से कॉमनीफॉर्म साम्यवादी सूचना ब्यूरो को पुनर्जीवित कर दिया। It was founded with the intention to bring the communist government in the Soviet sphere to influence in the line of Moscow's policies. Thus, it was an attempt to further consolidate communism in Eastern Europe. अब देखिए, उसकी स्थापना सोवियत प्रभाव क्षेत्र वाली सभी साम्यवादी सरकारों को मॉस्को की नीतियों के अनुरूप बनाए जाने के लिए की गई थी। इस प्रकार यह यूरोप में साम्यवाद को और मजबूत करने का प्रयास था। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO NATO was signed on April 4, 1949. This treaty was signed in pursuance of the policy of containment. 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि अवरोध की नीति के अनुसरण में हस्ताक्षरित की गई। It was between the US and other European countries, Britain, France, Belgium, Canada, Denmark, Iceland, Italy, the Netherlands, Luxembourg, Norway, and Portugal. The treaty was a military alliance against the Soviet bloc. यह संधि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नेदरलैंड, लक्समबर्ग, नॉर्वे और पुर्तगाल के बीच हुई। यह संधि सोवियत ब्लॉक के खिलाफ एक सैन्य गठजोड़ था। Article 5 of the NATO Treaty is the central provision which states that an attack on any member of NATO would be considered as an act of aggression against all others. However, every member state had the right to decide on the kind of support it wanted to offer to other member states. Later, Greece and Western Germany also joined the NATO. नाटो संधि का अनुच्छेद 5 केंद्रीय उपबंध है, जिसके अनुसार नाटो के किसी भी सदस्य पर हुए आक्रमण को अन्य सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। फिर भी प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को यह तय करने का अधिकार था कि वह अन्य सदस्य राष्ट्र को किस प्रकार की सहायता प्रदान करना चाहता है। बाद में ग्रीस एवं जर्मनी भी नाटो के सदस्य बन गए। Post 1945 developments in China and Korea led to the intensification of the Cold War. चीन तथा कोरिया में 1945 ईस्वी के बाद हुई गतिविधियों से और सघन हो गया। शीत युद्ध। अब देखिए, इन चाइना द कम्युनिस्ट gained power in 1949 under Mao Zedong and People's Republic of China was established. अब यहाँ बोला सी यूनिट 5.5.7। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं आगे इसके बारे में पढ़े थे।
बोल रहा है शीत युद्ध में चीन 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों को सत्ता मिल गई और चीनी लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हुई। The United States refused to recognize the People's Republic of China, which was also denied entry into the United Nations. Only Taiwan, nationalist China, was recognized. अब देखिए आगे क्या हुआ। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका ने चीनी लोकतांत्रिक गणतंत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उसे संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश भी नहीं दिया, केवल ताइवान राष्ट्रवादी चीन को ही मान्यता दी गई। The United States used its powers of veto to keep Communist China out of the United Nations (UN), and the Soviet Union effectively boycotted the UN because of this. अमेरिका ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के से बाहर रखने के लिए अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया और रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ का कारगर ढंग से बहिष्कार कर दिया। However, this did not mean the establishment of friendly relation between the USSR and PRC, China, People's Republic of China. After 1950, their relations took a turn for the worse. फिर भी इसका यह मतलब नहीं है कि सोवियत संघ और चीन के बीच दोस्ती हो गई, मित्रता स्थापित हो गई। 1950 के बाद इनके संबंध बिगड़ने लगे। After the defeat of Japan in the World War II, Korea was divided into North Korea under Soviet control and South Korea under American control in accordance with the Potsdam Conference. अब देखिए, बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दो भागों में बंट गया। पोट्सडैम सम्मेलन के अनुसार उत्तरी कोरिया सोवियत संघ के नियंत्रण में और दक्षिण कोरिया अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। साउथ कोरिया वॉज इफेक्टिवली अ डिक्टेटरशिप विद डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूएसए। दक्षिण कोरिया में एक कारगर तानाशाही व्यवस्था स्थापित हुई जिसे अमेरिका का सीधा समर्थन हासिल था। इन नॉर्थ कोरिया अ प्रो सोवियत गवर्नमेंट वॉज सेट अप। उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ समर्थक सरकार स्थापित हुई। नीदर द सोवियत यूनियन नॉर द यूएसए recognized the governments which were opposed to them. In 1950, North Korea invaded South Korea. अब देखिए, बोल रहा है उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ समर्थक सरकार स्थापित हुई। न तो सोवियत संघ ने न ही अमेरिका ने अपने विरोध वाली सरकार को मान्यता दी। सन 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। The United Nations, whose permanently Security Council was dominated by capitalist state, declared North Korea the aggressor and set up a unified UN command to repel the North Korean attack. संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसकी स्थायी सुरक्षा परिषद में पूंजीवादी राष्ट्रों का दबाव था या दबदबा था, उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और उत्तरी कोरिया के आक्रमण का जवाब देने के लिए एक संयुक्त कमान का गठन किया। जनरल मैकआर्थर of the USA was named its commander. अमेरिका के जनरल को इसका कमांडर बनाया गया। The UN troops pushed North Korean forces out of the South Korea and entered deep into the North Korean territory, reaching the Chinese border. संयुक्त राष्ट्र, अब देखिए, संघ की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया की सेना को दक्षिण कोरिया से खदेड़ दिया और उत्तरी कोरिया की सीमा में काफी अंदर चीन की सीमा तक घुस गई। China then joined the North Korean troops to push the UN troops into South Korea. तब संयुक्त राष्ट्र संघ, अब देखिए, तब संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं को दक्षिण कोरिया में ढकेलने के लिए चीन ने उत्तरी कोरिया का साथ देना शुरू कर दिया। Ultimately, an armistice
was signed in 1953, bringing to an end the threat of an open war. अब देखिए, अंततः सन 1953 में एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे एक खुले युद्ध का खतरा टल गया. The Korean crisis was the first military struggle of the Cold War. कोरिया का संकट शीत युद्ध का पहला सैन्य संघर्ष था. The USA and USSR and PRC did not engage in much direct combat with one another, although North Korean aircrafts were actually flown by Soviet pilots, but they fought each other's client powers, the Republic of Korea and the Democratic Republic of Korea. Neither was actually a democracy. अब देखिए, बोल रहा है सोवियत संघ और अमेरिका तथा चीन एक दूसरे के साथ ज्यादा सीधी लड़ाई में शामिल नहीं हुए. हालांकि उत्तरी कोरिया के हवाई जहाज़ों को वास्तव में सोवियत संघ के पायलट उड़ा रहे थे, लेकिन वह एक दूसरे पर आश्रित शक्तियों, कोरियाई गणतंत्र और कोरियाई प्रजातांत्रिक राज्य, जिनमें से असल में कोई भी प्रजातंत्र नहीं था, उसी से लड़ रहे थे.